السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رفیق جی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسے عائزہ کا رشتہ کرائے؟ کوثر بیگم رفیق کو برہم ہوتی بولی۔ وہ کیسے اس خاندان میں اپنی بیٹی دے سکتی تھی جس سے وہ بھاگی تھی؟ پھر وہاں تو وہ بھی ہے۔ کوثر بیگم سوچتی کہاں بڈھی کی رفیق کی جانب متوجہ ہوئی۔ تو اور کیا کرتا؟ اس شاہ کے بچے نے پوری طرح سے گھیر رکھا ہے مجھے، میں اور کیا کرتا؟ رفیق بے بس لہجے میں بولا۔ کچھ بھی کرو، بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مگر میں اپنی بیٹی اس انسان کے حوالے نہیں کروں گی، کوثر سخت لہجے میں بولی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں عائزہ کی شادی اس سے کروں گا؟ پینترا بدلتے رفیق نے کہا۔ میں سمجھی نہیں رفیق، کوثر جو پہلے برہم ہو رہی تھی اب سنجیدہ ہوتے بولی۔ مکروہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے رفیق بولا۔ عمل، کوثر بیگم رفیق کے نام لینے پر مسکرا دی۔ ہاں عمل، وہی عمل جو اس خاندان کا حصہ تھی مگر گمشدہ سا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، پر یہ کیسے ممکن ہے رفیق؟ لہجے میں فکر لیے کوثر نے پوچھا۔ ممکن ہے، ایبک نہیں جانتا کہ اس گھر میں کوئی اور لڑکی بھی رہتی ہے۔ عائزہ کو میں ٹرپ پر بھیج دوں گا اور ہمارے احسانات تلے دبے عمل کو یہ شادی کرنی ہوگی۔ آخر کو اپنے چاچا کے لیے قربانی تو وہ دے سکتی ہے نا؟ مکروہ ہنسی میں سارا پلان رفیق نے کوثر کو بتایا، جس پر کوثر بھی ہنستی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، ایک تیر سے دو شکار، اس سے بزنس بھی بچے گا اور عمل سے جان بھی چھوٹے گی۔ ہاں ہاں ہاں، کوثر کہتی ہنستی، جبکہ اندر سے وہ خوش تھی کہ عمل اپنے اصل سے جا ملے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی معصوم سی شکل بنائے حمزہ اور ریان ایبک کے کمرے میں آئے، جو بلیک ٹی شرٹ میں بلیک ہی ٹراؤزر پہنے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کر رہا تھا۔ دونوں کے آنے پر اس نے ایک نے لیپ ٹاپ بند کیا اور معصوم چہرہ بنے حمزہ اور ریان کو دیکھا، جو ہاتھ کو باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب میں نے آپ دونوں کو بائک ریسنگ سے منع کیا تھا تو کیوں ریسنگ کی؟ کمرے میں سرد و اسپاٹ ایبک کی آواز گونجی۔ بھائی، حمزہ منمنایا۔ نو حمزہ شاہ، نو، ایبک نے غصے سے بولا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظروں کا تبادلہ ہوتے ہی دونوں صوفے پر بیٹھے ایبک کے پاس پاؤں میں بیٹھ گئے۔ حمزہ نے دایاں گھٹنا جبکہ ریان نے بایاں گھٹنا پکڑا۔ بھائی، میں جانتا ہوں آپ ہماری سیکیورٹی کو لے کر پریشان رہتے ہو۔ مام ڈیڈ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ معاف کر دیں، اس رانا کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے جو جن کی طرح ہر طرف منڈلاتا رہتا ہے۔ پلیز بھائی، نم آنکھوں سے حمزہ بولا، جس پر ایبک کا دل پسیج گیا۔ تم دونوں ہی میری زندگی ہو حمزہ اور ریان، آخری بار تمہاری غلطی معاف کر رہا ہوں، آگے سے ایسا نہ ہو۔ دونوں کو تنبیہ کرتے ایبک نے کہا، جس پر دونوں نے تابیداری میں سر ہلایا۔ گڈ، جاؤ دائیں ماں سے کہو کھانا لگائیں، میں آتا ہوں، دونوں کی گال تھپتھپا کر ایبک نے کہا، جس پر دونوں مسکرا کر کمرے سے چلے گئے۔ ایبک اٹھ کر مرر وال کے پاس آیا اور اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ مام، آپ نے ڈیڈ سے وفا نہ کی اور اس انسان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ ڈیڈ نے ہمارے لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ ہم نظر انداز نہ ہوں، مگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور میرے لندن جاتے ہی اپنے ڈیڈ کو سلو پوائزن دینا شروع کیا۔ نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے شوہر کی۔ جب ڈیڈ کو معلوم ہوا تب ڈیڈ نے دونوں کو پوائزن دے کر مار ڈالا۔ میرا عورت ذات سے یقین اٹھ گیا ماما، میرے کندھے ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھک گئے۔ پر جو ان سب کا ذمہ دار ہے وہ کیوں آزاد ہے؟ جو کچھ میں نے جھیلا اور میرے چھوٹے بھائیوں نے، وہ بھی اولاد کی صورت میں سہے گا۔ اب اسے بھی تکلیف سہنی ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ حمزہ اور ریان نے سہی۔ عائزہ رفیق کا انتظار کرنا، تمہاری صورت عائزہ رفیق کو رنج و الم سے آشنا کروانے والا ہوں میں۔ اپنا ہاتھ مرر پر رکھتے ایبک زارشا ضبط کرتا سوچ اٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ عائزہ، رفیق اور کوثر عائزہ کے کمرے میں آتے اس کو بلایا۔ ارے آئے مما پاپا، خاموش خوش ہوتے عائزہ بولی، جس پر رفیق اور کوثر عائزہ کے برابر بیٹھ گئے۔ کوئی کام تھا آپ دونوں کو؟ عائزہ کے پوچھنے پر رفیق نے ایک انویلپ عائزہ کو دیا، جس کو عائزہ حیرانی سے تھام گئی۔ کوثر کے اشارے پر عائزہ نے وہ انویلپ کھولا جہاں یورپ کی ٹور کی ٹکٹ تھی۔ میری بچی کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ، رفیق مسکرا کر بولا، جس پر ہنستی عائزہ رفیق کے گلے لگی۔ تھینک یو ماما پاپا، خوشی سے نہال ہوتی عائزہ ٹکٹ دیکھتے اس کو سینے سے لگا گئی۔ اپنی بچی کو خوش دیکھ کر رفیق اور کوثر مسکرا دیے۔ کل تمہاری فلائٹ ہے، جانے کی تیاری کرو، تم خوب انجوائے کرنا، کوثر عائزہ کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتی رسانیت سے بولی۔ جی ماما، کہتی عائزہ دونوں کے گرد اپنے بازو کر گئی۔ فیملی حق پر تینوں مسکرا دیے۔ اس منظر کو عمل شفیق نے نم آنکھوں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے کافی کا کپ واپس لیے مڑ گئی۔ سچ کہتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں، ان کے دم سے ہی ساری خوشیاں ہیں۔ اپنے کمرے میں آتی عمل اپنے مما پاپا کی تصویر ہاتھوں میں لیے روتی۔ کوئی سوتا ہے آنچل کے تلے، کوئی دل ممتا کو ترستا ہے، کہیں مایوسی دھوپ کھلی، کہیں پیار ہی پیار برستا ہے، کہیں سرد ہے تو کہیں مرہم ہے،
जीवन सुख दुख का संगम है, कभी हंसता है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। खाने के बाद एबक बैकयार्ड में आया, जूता उतारकर अपने अंदर की जलती आग को ठंडा करने के लिए नंगे पाँव घास पर चलने लगा। एबक, कितनी दफ़ा समझाया बेटा, रात में यूँ घास पर नंगे पाँव नहीं चलते। अपनी मम्मा की आवाज़ पर एबक फ़ौरन पलटा, जहाँ विला के मेन डोर पर मिसेस ज़ारशाह खड़ी एबक को तंबीह कर रही थी। जबकि 15 साला एबक अपनी माँ की बात पर मुस्कुराता उनके पास आता, अपने घास में अटे पाँव अपनी मम्मा के पाँव पर रखकर हंस दिया। जिस पर मिसेस ज़ारशाह एबक को कान से पकड़े अंदर ले गई। मंजर आंखों से हटा तो अजियत की एक लहर एबक के जिस्म जान में दौड़ गई। गुजरे हुए लम्हों की यादें हर वक्त हमें तड़पाती हैं, एक साया बनकर आती हैं, एक साया बनकर जाती हैं। एक तन्हाई का आलम है, जीवन दुख सुख का संगम है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, अमल की आवाज़ पर क्लास से बाहर जाता एबक रुका और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, जो अपनी असाइनमेंट हाथों में लिए खड़ी थी, जो एतमाद के साथ खड़ी सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। यस, बेतासुर एबक बोला। सर, आपने मुझे असाइनमेंट में मार्क्स कम दिए हैं, जबकि मेरा सारा मटीरियल ठीक है। वो इस वजह से मुझे कॉपी पेस्ट वर्क नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ी और मेहनत करती तो आपके मार्क्स ठीक आते। कॉपी पेस्ट? पर मैंने लाइब्रेरी से बुक्स ली थी सारी। आप मेरी मेहनत को कॉपी पेस्ट कैसे कह सकती हैं सर? अमल को दुख हुआ, जिसकी बिना पर उसने एहतजाज किया कि उसकी मेहनत को सर एबक ने यूँ किसी खाते भी नहीं लिया था। मैं आपका सर हूँ, जो मुझे ठीक लगा कर दिया, और बहस नहीं। नेक्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट करने से परहेज़ करना। अमल को नसीहत करते एबक क्लास से चला गया। पूरी क्लास का यही हाल था। एबक को किसी की असाइनमेंट पसंद नहीं आई थी। रेयान और हमजा जानते थे कि उनका भाई हिटलर को मात देगा। वो तो शुक्र है कि एक हफ्ते के लिए वो इस कॉलेज में आए थे, जो आज ख़त्म हो गया था। अगर वह सच में इस कॉलेज का प्रोफेसर होता तो उनके पास होने के चांस बहुत कम थे। चलें, अपनी असाइनमेंट लिए खड़ी अमल के पास फातिमा आती बोली, यार सर का आज आखिरी दिन था, वो जाते जाते अच्छी याद देकर जाते, मगर नहीं, 3 दिन इस बंदे ने सबका सांस खुश्क करके रखा। खुश्क इंसान ना होता, अमल मुँह बनाती बोली, जिस पर फातिमा हंस दी। जबकि हमजा और रेयान अपने भाई के बारे में अमल के एहसास जानते एक दूसरे को देख गए। बहन माना तो कुछ नहीं कह सके, वरना कोई और होता तो अब तक अस्पताल होता। अब चलो, मुझे सेंटोरस जाना है, फातिमा कहती क्लास से बाहर निकली। हमजा और रेयान फातिमा के साथ ही बाहर रहे। अमल अपना बैग लेकर घर जाने का इरादा करते निकली। अमल, तुम भी साथ चल रही हो? हमजा, तुम कार ले आओ अपनी। फातिमा ने हुक्म सादर किया, जिस पर हमजा लबैक कहता पार्किंग में चला गया। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? अंडे देना, रेयान मुँह बनाता बोला तो फातिमा ने उसके बाजू पर थप्पड़ मारा। अगर तुम हमजा छोड़ो, रेयान कहता कहता चुप हुआ, जबकि फातिमा बात का मतलब समझती झेंप गई। अमल ने फातिमा की नज़र उतारी थी। चलो, हमजा आ गया, रेयान कहता कार में बैठ गया। अमल चलो ना, फातिमा ने मिन्नत समाजत की कि अमल सर हिलाती रेयान के पीछे कार में बैठ गई। फातिमा के बैठते ही हमजा ने फ्रंट मिरर सेट किया। मेरे बाप, वो यही है, कहीं नहीं जा रही, अब चल। रेयान के टोकने पर अमल का कहकहा कार में छूटा, जबकि हमजा शर्मिंदा होते कार स्टार्ट करके। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। क्या? अमल की हैरत ज़्यादा चीख निकली, जिस पर वहाँ से गुजरता एबक ज़ारशाह रुका, जिसका मेन ऑफिस और प्राइवेट अपार्टमेंट सेंटोरस के 10वें फ्लोर पर था। आज अपने लिए शॉपिंग करने एबक नीचे आया तो अमल की चीख ज़दा आवाज़ पर रुका। अमल, क्या हो गया? सब देख रहे हैं। फातिमा ने अमल को टोका, जबकि हमजा और रेयान गुची पर चले गए। अमल फातिमा के साथ फ्लावर शॉप पर खड़ी थी। फातिमा, देखो ज़रा, इस नन्ही सी कली का 1000 मांग रहा है, जिससे पूरी दुकान का बिल देना हो इसने मुझसे लेकर। सदमे में अमल बोली, जिसको सुर्ख गुलाब की कली पसंद आई थी, मगर उस कीमत अमल के होश उड़ा गई। अमल बिहेव। फातिमा ने अमल को टोका, जिस पर अमल चुप हुई और गुलाब की कली वापस रखते फ्लावर शॉप के बंदे से बोली, अपने पास ही रखो इसको। मैम, ये इम्पॉर्टेंट है तभी इतना महंगा है। फ्लावर शॉप मैन ने उस कली के महंगा होने की वजाहत की। देखो भाई, इम्पोर्टेड तो मेरे जूते हैं, जो मैंने फैज़ाबाद के लंडे से ख़रीदे हैं, और यकीन मानो 3रा साल चल रहा है, मगर मजाल है कि ज़रा सा भी हिले होंगे। अमल की बात पर फ्लावर्स मैन ने अमल के शूज़ की तरफ देखा, जो ब्लैक स्नीकर्स थे, जबकि एबक सर झटकता परफ्यूम शॉप पर चला गया। अमल चलो यहाँ से। फातिमा अमल को खींचती अगली दुकान पर ले गई। 2 से 3 दुकानों पर घूमने के बाद फातिमा परफ्यूम शॉप पर आई। पापा कहते थे, किसी को अगर तोहफा दो तो खुशबू दो, क्योंकि ये रिश्तों को मजबूत करती है। खुशबू एहसास है जिसको जब जब लगाओ तो देने वाले की अहमियत, मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा होता है। ओनली ब्लैक फॉर लेडीज़ की खुशबू स्मेल करती है, अमल बोली, जिस पर फातिमा मुस्कुराती। तुम्हें ये चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अमल ने परफ्यूम वापस रखा, जिसको फातिमा ने उठा लिया। वो जानती थी अमल के चाचा चाची जितने अमीर से ही अमल की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में थोड़े मगरूर हैं। हो गई शॉपिंग? रेयान ने वहाँ आते पूछा। जी हो गई है, अब बस खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। फातिमा के कहने पर अमल परेशान हुई। वो तो बताकर भी नहीं आई थी, चाचा चाची बहुत बोलेंगे अगर उसे देर हुई।
अमल इस तरफ। अमल को शॉप से बाहर जाता देखकर फातिमा ने फूड कोर्ट की जानिब इशारा किया। फातिमा, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, तुम जानती हो ना। अमल मिनमिनाई। कुछ देर, फिर चलते हैं घर। रेयान के कहने पर अमल चुप होती सर झुकाए चल दी। उसे पता था जब तक फातिमा, हमजा और रेयान नहीं जाएंगे वो यहाँ से नहीं जा सकती। आउच। अमल जो सर झुकाए चल रही थी आगे वाले के रोकने पर उसकी पुश्त से लगी। होश में आती बोली तो आगे वाला पलटा, जिसको देखकर अमल चुप हुई। आई एम सॉरी सर। एबक को सामने देखकर अमल मिनमिनाई, जो बरहमी से उसी को देख रहा था। अमल के सॉरी पर उसके माथे पर बल आए। मिस अमल, जब किसी पब्लिक एरिया पर जाते हैं तो अपनी आंखें खुली और आवाज़ मध्यम रखते हैं, यूँ हर जगह दंदनाते नहीं फिरते। अमल को तंबीह करके बिना उसकी सुने एबक ये जा वो जा। अमल एबक को जाता देखती वहीं खड़ी हो गई। अमल। हमजा जो अमल को ढूंढने आया तो उसको खड़ा देखकर बुलाया, जिस पर अमल चौंकी। हाँ। उधर फातिमा इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। फूड कोर्ट फातिमा की तरफ इशारा करते हुए हमजा ने कहा, जिस पर अमल सरी लाती हमजा के साथ फूड कोर्ट चली गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। या अल्लाह, चाची और चाचू के इर्तिकाब से बचा लेना, देर हो गई। उफ़। जंजुआ विला में गेट से अंदर आती अमल बोली, फिर तेज़ तेज़ कदम लेती अंदर आई। सामने हॉल में रफ़ीक, जंजुआ और कौसर बेगम को बैठा देखकर अमल के कदम रुके। अस्सलाम वालेकुम चाचू चाची, मध्यम लहजे में अमल बोली। रफ़ीक और कौसर जो अमल के इंतज़ार में थे उसके सलाम के जवाब देकर रफ़ीक जंजुआ बोला, अमल इधर आओ अपने चाचू के पास। अमल हैरानी से अपने चाचू का लहजा हज़म करती खामोशी से रफ़ीक जंजुआ के पास जाकर बैठ गई। पढ़ाई कैसी चल रही है? रफ़ीक जंजुआ के अगले सवाल पर अमल उनको देखने लगी कि आज इतने सालों के बाद उन्हें मेरी पढ़ाई का ख्याल कैसे आया। ठीक जा रही है चाचू। गुड। अमल, भाई और भाभी के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने आयज़ा और तुम में कभी फ़र्क नहीं किया। आयज़ा तुमसे बड़ी है, असूलन तो मुझे पहले इसकी शादी करनी चाहिए, मगर दुनिया को क्या कहेंगे कि इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए और भतीजी के लिए कुछ नहीं। अमल रिश्ते पर चौंकती अपनी चाची को देखने लगी, जो मुस्कुराकर अमल को ही देख रही थी। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, लड़का बहुत अच्छा है और वेल, पर चाचू मैं अभी। अमल रफ़ीक को टोकते हुए बोली, मैं समझता हूँ अभी तुम सिर्फ 20 साल की हो। आयशा भी शादी के हक़ में नहीं है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इस रिश्ते को मैं गंवाना नहीं चाहता। रसानियत से रफ़ीक जंजुआ ने अपनी बात पूरी की। पर चाचू मेरी पढ़ाई। अमल कहकर चुप हुई। मैं बात करूँगा, वो तुम्हें आके पढ़ने देगा। आयशा तो यूरोप चली गई है, 1 माह तक आएगी। ये रिश्ता मेरे दिल को लगे। मैं चाहता हूँ तुम हामी भरो ताकि मैं शफीक भाई के आगे सुरखरू हो सकूँ। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं अमल, मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। झूठ के आंसू साफ करते हुए रफ़ीक जंजुआ बोला। कौसर ने रफ़ीक की एक्टिंग पर उसको दाद दी। जी चाचू, अमल बोली। क्या मतलब अमल? फ़ौरन से रफ़ीक ने पूछा। मैं तैयार हूँ, अगर आपको ये रिश्ता मेरे लिए ठीक लग रहा है तो मैं तैयार हूँ। आप बाबा के आगे शर्मिंदा नहीं होंगे, अमल ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा, जिस पर रफ़ीक अमल को खुद से लगा गया और कौसर को देखते कहने लगा, तुम बहुत खुश रहोगे वहाँ। कहकर रफ़ीक ने कौसर को आंख मारी, जिस पर कौसर बेगम हंस दी। ये मामला सर हुआ। जाओ अमल, फ्रेश हो जाओ, मैं रज़िया से कहकर खाना लगवाती हूँ। कौसर की शीरीनी आवाज़ पर अमल सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा था रफ़ीक, अगर तुम शफीक भाई का जिक्र करोगे तो अमल बिना किसी बात के इस रिश्ते को मान जाएगी। देखो वैसा ही हुआ, उससे हमारा बिजनेस भी बच जाएगा और हमारी बेटी भी। कौसर कहकर रफ़ीक से दाद देने लगी। तुमने ठीक कहा था कौसर, अमल से निकाह से पहले मैं उससे टेंडर अपने नाम करवाऊंगा, जिससे हमारे बिजनेस को अरूज मिलेगा। जब वो अमल को रुखसत करके अपने साथ ले जाएगा तब उसे पता चलेगा कि वो आयज़ा नहीं अमल है। इससे मेरी बच्ची बच जाएगी और शाह के ज़ेर तकाब अमल आ जाएगी। रफ़ीक कहता कौसर के साथ हंस दिया। वह दोनों अपनी चाल चल चुके थे, अब वक्त ने बताना था कि किसके हक़ में अच्छा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।